It is around 3:02 p.m. I will wait for 2 more minutes. I'll start the class at 3:04 p.m. so that let us wait for some people to join more. By that time, you all do one thing in the chat box, write your name and class roll number for attendance. I repeat, in the chat box, write your name and class roll number for attendance. It's 3:03 p.m. We will wait for 1 more minute. Again, I'm repeating, those who have joined just now, please give your attendance in the chat box. Okay, it's around 3:04 p.m. So let us start the class. Let me share my screen. Can anyone tell me whether my screen is visible to you or not? Yes, sir, it is visible. It is visible. Yes, Okay. sir. Okay, Yes, sir. fine, It is. fine. So in the last class, that is the class which I took in the morning from 10:20 a.m. to 11:20 a.m., we have discussed till this slide. Yes or no? We have discussed what is design, then what are the different areas where we can use design, then what is machine design, what are the different types of machine design. All these things we have discussed in the morning class. So in continuation with that morning class, let us move towards our next topic, and the next topic is basic procedure of machine design, or the steps which a designer should follow to design any machine. Sir, Rohil is asking to join means. Wait. Let me check. Yes. Admit. Fine. Okay. So our next topic is the basic procedure of machine design process. That means if I want to design any machine, it is this design procedure is common for any kind of machine. Fine, any kind of mechanical machine. If I want to design, what are the basic steps or what are the basic process by which I will design that machine? Okay. So can anyone tell me that what will be the very first step to design any machine? Hello. सर फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप मींस मान लो मुझे एक गियर को डिजाइन करना है, ठीक है, या मुझे मान लो एक बियरिंग को डिजाइन करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए मशीन डिजाइन प्रोसेस में, जो डिजाइनर के दिमाग में आएगा, पहला स्टेप क्या होगा? कोई भी आइटम ले लो, कोई भी कंपोनेंट ले लो, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट Sir, शुड कम? imagination. Sir, specification, sir. स्पेसिफिकेशन बाद में आता है थोड़ा। स्पेसिफिकेशन बाद में आता है।
उसके पहले सर इमेजिनेशन। इमेजिन आप करोगे, ठीक है, और क्या? इमेजिनेशन के साथ और क्या? पर्पस। यस, पर्पस। पर्पस, या इसको दूसरे वर्ड में बोलूं मैं, नीड। Why there is a need to design that particular machine. Third, or I can say market survey. ठीक है, मान लो मैं एक स्कूटर को डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं एक स्कूटर को डिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये सोचूंगा दैट व्हाई आई एम डिजाइनिंग दैट स्कूटर, बिकॉज इन टूडेज मार्केट स्कूटर इज अवेलेबल एवरीवेयर। आप होंडा का उठा लो, होंडा में भी बहुत वैरायटी के स्कूटर स्कूटी वगैरह है। आप हीरो का उठा लो, हीरो में भी बहुत वैरायटी के स्कूटी वगैरह है। तो आप जो स्कूटी को या आप जो स्कूटर को डिजाइन करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसा क्या होगा कि डिजाइन, मतलब आप जो स्कूटी को डिजाइन करोगे उसके बाद वो जाके मार्केट में बिकेगा। सबसे पहले तो ये दिमाग में लाना पड़ेगा, देन ओनली उसके बाद फिर बाद में आगे आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो आपको क्या समझ में आया मेरा जो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज द नीड टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर मशीन, or the purpose why I want to design that particular machine, और मार्केट सर्वे। भाई दुनिया में बहुत तरीके के स्कूटर अवेलेबल है, तो मेरे डिजाइन में ही ऐसी क्या खास बात है कि मेरा डिजाइन ही इंडस्ट्री अप्रूव करेगा, इंडस्ट्री मेरे डिजाइन को ही देख के प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचेगा और उनसे प्रॉफिट कमाएगा। इज माई वॉइस क्लियर? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, इज इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट स्टेप ऑफ मशीन डिजाइन प्रोसेस में? नहीं सर। Okay. नहीं sir. So the first step of machine design process is recognition of need. Why there is a need, or market survey. ठीक है, आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा कि मेरा स्कूटी में ही मैं ऐसा क्या नया कुछ डिजाइन करूं कि मेरा स्कूटी का डिजाइन जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है सब मेरे डिजाइन को ही लेने के बाद फिर मेरे डिजाइन को ही फॉलो करते हुए वो अपना प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचे और उससे अपना प्रॉफिट कमाए। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट कैन बी द सेकंड स्टेप? If I want to design any component, क्या होना चाहिए सेकेंड स्टेप? सर डायमेंशन, सॉरी, स्पेसिफिकेशन। specifications. Very good. That is specification of the product. अब specification में क्या क्या चीज आ सकता है, कोई बोल पाएगा? What all things a designer should keep in mind in specifications of product while designing that product? First and the foremost thing is the output capacity of the machine. हाँ कि ना? हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes. फाइन। भाई मशीन, मैं जिस मशीन को डिजाइन करने जा रहा हूँ भाई उसका आउटपुट कैपेसिटी कितना है, वो कितना आउटपुट दे सकता है? एक मैं रफली एक तो कैलकुलेट एनालिसिस तो करूंगा मैं कितना वो कैपेसिटी दे सकता है। अगर कस्टमर को जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी का मशीन चाहिए अगर मैं वो चीज डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा डिजाइन तो बेकार हो गया। फाइन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हाट इट कम्स इज आउटपुट कैपेसिटी ऑफ द मशीन। नेक्स्ट और क्या हो सकता है स्पेसिफिकेशंस में? फर्स्ट वन इज आउटपुट कैपेसिटी ऑफ द मशीन, और क्या हो सकता है? Sir, universal fit means it is usable with other products. यूजेबल विद अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल देके बताओ। जैसे अगर मैं एक नट और बोल्ट डिजाइन करता हूँ, स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ठीक मुझे है, कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा जिससे वो हर अच्छा, जगह यूज आप बोल रहे हो मतलब स्टैंडर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर शेप होगा नट का, एक पर्टिकुलर साइज होगा जो मुझे, जैसे कि इंडस्ट्री में होता है ना कि M20 का साइज, M30 का साइज, M40 का साइज, मेरे को उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मेरे को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। Yes, that is also one factor. What else?
Can I say service life is one of the specifications of the product which I am going to design? सर सर्विस लाइफ मतलब सर्विस लाइफ मींस कितने साल तक आपका जो डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है वो यूज में है. 10 years, 15 years, 20 years, 100 years, 1000 years. That is service life. यस सर मतलब Your design will be good or your design will be best if the service life of the component which you have designed is good. आप गाड़ी खरीदते हो दुकान से, आप मान लो आपने खरीदा यामाहा का खरीदा FZS, ठीक है, नया नया खरीदा, ठीक है, 2 साल चला, 2 साल के बाद वो अपना मतलब रंग दिखाना चालू कर दिया. तो क्या जिस आदमी ने उस पर्टिकुलर यामाहा की गाड़ी को जिसने डिजाइन किया था, क्या उसका डिजाइन अच्छा डिजाइन था? नहीं था अच्छा डिजाइन. फाइन. No, sir. I will consider service life also one of the specifications of the product while designing any component. आया बात समझ में? Any doubt? Fine. Okay. What else? And third and the most important part of specification of product is the cost and reliability. जाहिर सी बात है, मैं जिस कंपोनेंट को डिजाइन कर रहा हूं, अगर उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद और वो रिलायबल नहीं होता है, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं. सो द कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी शुड बी विद इन द डिजायर्ड लिमिट if I am designing any product. Is it clear? Any doubt? No, sir. Clear, sir. Fine. Now, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. For example, if I am designing a scooter, then can you tell me that what will be the specifications of that scooter that the designer will keep in mind while designing that scooter? Wheelbase, क्या tire बोला specifications. आपने? क्या Sir, बोला? wheelbase. Capacity of engine, sir. Capacity of engine. Capacity of Engine. capacity of engine. ठीक है. और Sir, wheelbase. व्हील बेस. अब इसको एक्सप्लेन करो क्या Yes, है sir. व्हील बेस, क्योंकि बहुत लोग को ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं होगा. आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना क्या है व्हील बेस. Sir, wheelbase is the center distance between front and rear tire. ओके, तो उससे क्या होगा, मतलब टू व्हीलर में क्या है उतना इफेक्ट आएगा. नॉर्मली 4 व्हीलर पे इफेक्ट आता है व्हील बेस से, टू व्हीलर में उतना क्या इफेक्ट होगा? सर अगर wheelbase अगर छोटा हो जाएगा तो ट्रेल एंगल बढ़ जाएगा सर. अब ये ट्रेल एंगल क्या है तो आपको बाकी लोगों गाड़ी को समझाना अनस्टेबल पड़ेगा हो ना. जाएगा सर. बहुत लोगों को पता नहीं है क्यों, कौन सा ये एंगल, कौन सा वो एंगल. हाँ बोलो. सर मतलब जो स्टीयरिंग जहाँ पे होता है, मतलब हैंडल जो जहाँ पे होता है बाइक का, वहां से अगर स्टीयरिंग एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जा सकता है, वो हॉरिजॉन्टल से मतलब जितने एंगल करते हैं उसको ट्रेल एंगल बोलता है सर. अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा, मतलब आप थोड़ा सा एकदम थोड़ा अंदर घुस रहे हो. मैं एक नॉर्मल जानना चाह रहा हूँ. नॉर्मल अगर मैं एक स्कूटर को डिजाइन कर रहा हूँ तो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे? नॉर्मल जनरल. क्या मैं ये बोल सकता हूँ फ्यूल कंजम्पशन एक स्पेसिफिकेशन होगा स्कूटर का? माइलेज तो सबसे पहले देखता होगा ना है. फ्यूल कंजम्पशन, माइलेज. फॉर एग्जांपल 1 लीटर में मेरा जो बाइक है वो कितना दूर जाएगा? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर. दिस इज वन स्पेसिफिकेशन ऑफ माय प्रोडक्ट. फाइन. एक और क्या हो सकता है? मैक्सिमम स्पीड. कितना स्पीड दे रहा है आपका बाइक? ठीक है, अगर रफ रोड है उस केस में कितना स्पीड दे रहा है? अगर स्मूथ रोड में आप चला रहे हो उस केस में कितना स्पीड दे रहा है? स्पीड इज आल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ योर प्रोडक्ट. थर्ड वन इज आई कैन से कैरिंग कैपेसिटी. अब उस बाइक में तो लोग बैठेंगे, एक आदमी बैठ सकता है, 2 आदमी बैठ सकता है, 3 तो बैठ नहीं सकता. इलीगली बैठता है इंडिया में 3, लेकिन 3 अलाउड नहीं है. एक आदमी 2 आदमी बैठ सकता है. ठीक है.
अब अगर मान लो 2 आदमी बैठा है बाइक में, जैसे मान लो आप ही लोग कॉलेज आते हो, ठीक है, अब आपके पीछे बैग रहता है, बैग का भी कुछ वेट होगा, तो ओवरऑल जो वेट हुआ वो आपका खुद का वेट प्लस बैग का वेट, उतना झेल पाएगा कि नहीं आपका बाइक? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Fine. Then overall dimensions of your bike, length, what will be the length of your bike? What will be the width of your bike? What will be the height of your bike? That is Weight also also. one of the specifications. Yes or Yes. no? Then the overall weight of the bike. Overall weight means ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन, एक तो बाइक का वेट प्लस आदमी का वेट जो चला रहा है, अगर पीछे कोई और बैठा हुआ है तो उसका भी वेट, प्लस अगर उनके हाथ में कोई बैग है या पीठ में कोई बैग है तो उसका भी वेट। दिस विल बी द ओवरऑल वेट in dynamic condition. Static condition में only I will take the weight of the bike. That is also one of the specifications of the product. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Fine. And Yes, last sir. one which I can take is the cost. अब भाई इसका कॉस्ट कितना है बाइक का? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना कॉस्ट है? ये भी तो एक स्पेसिफिकेशंस होगा, क्योंकि कॉस्ट जितना ज्यादा होगा उतना आदमी प्रेफर करेगा कि भाई मैं उस बाइक के पीछे ना जाऊं, है कि ना? हाँ sir. So with this example, I think I have made my point very clear that what I mean by specifications of the product while designing any machine component. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us move towards the third point. Which a designer, what is the third step while designing any machine component? Third step is this one. Study alternate mechanism for product and select proper mechanism for that product which you are going to design. What you are understanding from this line? Study of alternative mechanism for a product and selection of proper mechanism for the product which you are going to design. क्या समझ में आ रहा है इस लाइन से? और मैंने एक Sir, डायग्राम बनाया है सिंपल सा, इससे क्या समझ में आ रहा है? सर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं वेदर द स्कूटर वी आर मेकिंग विल बी फ्यूल बेस्ड और इलेक्ट्रिक. आई थिंक दैट कैन बी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म. ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा थर्ड पॉइंट के बारे में? मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है, whatever diagram I have made in the slide, it is self-explanatory. You can explain from this by looking at this diagram that what is the third point. Can anybody explain anything else? और कोई किसी को कुछ बोलना है? चलो ठीक है. स्टडी ऑफ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स. फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे 3 रास्ता है. रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3. तीनों रास्ते से मैं अगर जाऊंगा देन आई कैन मेक दिस प्रोडक्ट और आई कैन डिजाइन दिस प्रोडक्ट. दीज आर द 3 ways by which I can design this product. Will I choose all the 3 ways to design a product? Yes or no? Will I choose all the 3 ways to design that product? Yes or no? सर प्रेफर्ड वे चूज करेंगे. Sorry? सर तीनों वे क्यों चूज करेंगे? तीनों अगर आप चूज करोगे तो हो सकता है कि अगर आप पहला रास्ता अगर आप चूज कर रहे हो उसमें आपको 10 घंटा लग रहा है आपका डिजाइन कंप्लीट होने में, दूसरे रास्ते में 5 घंटा लग रहा है, तीसरे रास्ते में 2 घंटा लग रहा है, तो कौन सा रास्ता चूज करोगे? तीनों तो आप चूज नहीं करोगे उस केस में. जिसमें आपका टाइम कम लग रहा है, जिसमें कॉस्ट कम लग रहा है, जिस रास्ते के थ्रू रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो सकता है, मैं तो वही रास्ता अपनाऊंगा. हाँ कि ना? यस सर. Fine. So out of these 3 mechanisms, what I am doing? I am selecting the second mechanism. Why? Because I understood that if I follow this second mechanism, my overall cost of the product will be low. And in order to design this product, if I choose the second mechanism, there will be easily raw materials will be available to me. So that's why I will be using this second mechanism to design the product.
This is your third step to design any machine component. फॉर एग्जाम्पल इसका मैं छोटा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सभी ने देखा है कि नहीं? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. हेलो. हाँ सर देखा है. फाइन. मतलब वीडियो देखा है. हाँ वीडियो देखा है. ठीक है. अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जब आप इसको आईसी इंजन में क्या होता है, वो वाल्व ओपन वाल्व ऑन और ऑफ करने के काम में आता है. ठीक है. ऊपर नीचे मूव करता है. अब इसको कैसे कैसे आप डिजाइन कर सकते हो? तरीका नंबर 1, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड लगा के आप ऊपर नीचे मूवमेंट करा सकते हो. हाँ या ना? जो कि आपने पढ़ा है ऑलरेडी थ्योरी ऑफ मशीन में. यस और नो? यस सर. फाइन. दूसरा तरीका क्या होगा? बहुत सस्ता तरीका, नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म. नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म से आप उसको रोटेट करते जाओ, मतलब आपका वो रोटेट भी हो रहा है एज वेल एज ऊपर नीचे मूव भी कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है. तो धीरे धीरे ऑन ऑफ होगा वाल्व. हेलो. यस सर. होगा कि नहीं होगा? स्क्रू नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म से घूम भी रहा है, रोटरी मोशन भी कर रहा है एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, अप एंड डाउन. तो वाल्व ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा. ठीक है. तीसरा कंडीशन है आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर. ठीक है. आप हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन एंड वाल्व यूज कर लो. ठीक है. उसमें आप फ्लूइड डाल दो. उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो आपका कनेक्टिंग रॉड वाला जो मैकेनिज्म है उसको ऊपर नीचे बहुत तेजी से मूव कराएगा. तो आप इन तीनों मेथड में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल है टू डिजाइन माय कंपोनेंट. So this is one of the simple example by which you can clearly describe the third point or the third basic procedure or the third step to design any machine component. What is the fourth step to design any machine component? Fourth step is the preparation of general layout of configuration and selection of joining methods between individual component of the product. अब इसमें क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? Preparation of general layout of configuration and selection of joining methods between individual component of the product. For example, मान लो मेरे पास दो मेटल है. This is metal number 1, this is metal number 2. If I want to join these two metals, what are the different techniques available to me? First is riveting. मैं rivet से join कर सकता हूँ दोनों मेटल को. Second is welding. I can weld both the metals, then the metal will get joined. Third one is bolting. Fine. By the help of bolts also I can join these two metals. Yes or no? Hello. यस सर. फाइन. अब ये जो रिवेटिंग, वेल्डिंग, बोल्टिंग, ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट स्टेप नंबर 3, रास्ता. ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे मैं मेटल 1 एंड मेटल 2 को मैं ज्वाइन कर पाऊंगा? बट इन स्टेप नंबर 4 व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक रिवेटिंग, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिवेटिंग. Single rivet joint, double rivet joint, triple rivet joint, zigzag riveting that you will study in module number 4, I think. Fine. Similarly, welding. Many types of welding are possible. Similarly, bolting. You can bolt, means you can use different types of bolts to join metal 1 and metal 2. So in step number 4, what you need to do is you need to draw डायग्राम्स. कितने टाइप ऑफ रिवेटिंग है, मतलब मैं मेटल 1 को मेटल 2 से रिवेट से जोड़ रहा हूँ, कितने तरीके से जोड़ सकता हूँ, वहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि हाँ दिस इज, मैं इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, सेकंड तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, थर्ड तरीके से भी जोड़ सकता हूँ. ठीक है. सिमिलरली वेल्डिंग, आई कैन वेल्ड मेटल 1 एंड मेटल 2 इन मेनी पॉसिबल वेज.
but you have to draw those diagrams. That this is the first diagram by which I can join these two metals by welding. This is the second diagram by which I can join these two metals by welding, and so on. And this process is nothing but preparation of layout. Means you are drawing a complete layout, that if I want to design this product, fine, this is the general layout, that step by step I will follow. If I follow these drawings step by step, I will finally I will finally go to my final destination, that is my entire the final product. Is the fourth step clear? Hello. Yes. Fine. Yes, sir. Any doubt in the fourth step? Okay. Next. Next is the fifth step. What is fifth step? Fifth step is design of individual component. For example, शाफ्ट जब मान लो अगर आप शाफ्ट को गाड़ी में लगाओगे, फाइन, तो शाफ्ट को तो ऐसे तो आप लगा नहीं सकते हो गाड़ी में, ठीक है, शाफ्ट को तो होल्ड करने के लिए, दोनों तरफ होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, तभी तो आप शाफ्ट को होल्ड कर पाओगे। तो शाफ्ट को होल्ड करने के लिए मैं बियरिंग लगाता हूँ, शाफ्ट के एक एंड पे, शाफ्ट के दूसरे एंड पे, उसको बियरिंग से मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। देन शाफ्ट कैन इजीली रोटेट इन बिटवीन दोस टू बियरिंग्स, फाइन। तो अगर आप एक कार को डिजाइन कर रहे हो, कार में मान लो उसमें कहीं पे शाफ्ट लग रहा है आपका, ठीक है, तो उसमें शाफ्ट भी लग रहा है, उसमें बियरिंग भी है, उसमें क्लच भी है, उसमें ब्रेक भी है, बहुत सारा छोटा छोटा स्मॉल मशीन एलिमेंट है। So in this step, what you will be doing is that you will be designing each and every small individual elements individually. And what are the different steps while designing all the individual elements? First step is determination of forces acting on that component, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बियरिंग, आप एक मशीन को डिजाइन कर रहे हो, उस मशीन के अंदर आपका एक बियरिंग है, ठीक है। अब उस बियरिंग पे कौन कौन सा लोड आ रहा है, उस लोड के वजह से कैसे आपका बियरिंग डिफॉर्म हो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट इन दैट फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द कंपोनेंट। अब जो बियरिंग है, बियरिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, फाइन। Now this also will depend, if you want to design that bearing for strength, then you have to see on the basis of strength how many materials are available for the bearing, or if you want to make your bearing rigid, then on the basis of rigidity how many materials are available in the data book, then you have to choose the best possible material. Third is hardness. If you want to make your bearing very hard, then again what are the materials that are available in the design data book, that you have to see, fine. Third point is the mode of failure of the component. Now बियरिंग, ऐसा तो नहीं है कि बियरिंग मैंने एक बार लगा दिया, ठीक है, अब उसके बाद मेरा काम हो गया, बियरिंग कभी खराब नहीं होगा, बियरिंग कभी फेल नहीं होगा, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। दुनिया में कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट आप ले लो, ठीक है, हर एक का एक फेलियर लाइफ होता है, एक फेलियर पीरियड होता है, फाइन। सो इन थर्ड स्टेप नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डिजाइनिंग इज द मोड ऑफ फेलियर, कैसे कैसे कोई भी छोटा छोटा मशीन एलिमेंट इनसाइड द एंटायर मशीन फेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बियरिंग, अगर बियरिंग डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, देन आई नो दैट ductile material fail. When it fail, when that ductile material, when the strength of the ductile material reaches yield strength, then that material will fail. So then I will design that ductile material on the basis of yield strength criteria. If I am designing say a brake, fine, and if that brake is made up of brittle material, fine, then I know again from the stress strain diagram that brittle material will fail at the ultimate strength point, fine. So while designing, designer should keep in mind that the material of the brake, if it is a brittle material, he will try to keep the strength of the brake lesser than that of the ultimate tensile strength of the brake. If he makes it more, the material, that brake material will fail, fine. Similarly, if I talk, say if in any component, if cyclic load is acting,
Fine. And I know that if in any machine member a cyclic load is acting, then due to that cyclic load, fatigue will take place. Fine. So I need to design that component on the basis of fatigue strength. This is your third point, means you have to identify different types of failure. It is not necessary that all the material inside a machine, if there are say 10 components, all the 10 components will fail through yielding criteria. No, it can, some components can fail through yielding criteria, some component can fail through ultimate tensile strength criteria, some component can fail through fatigue strength criteria. So you have to analyze each one of them, and accordingly you have to decide that failure criteria. And once this is done, the last part is determination of geometric dimensions of each and individual component using suitable factor of safety. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में वो क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, ये सब बनाया होगा, मशीन ड्राइंग में बनाया था. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बनाया था ना. तो आप क्वार्टर जॉइंट में क्वार्टर का लेंथ कितना होगा, क्वार्टर कितना है, क्वार्टर का टेपर कितना होगा, ठीक है. तो ये सब क्या है? These are nothing but the dimension parts. So once point number A, B and C is fulfilled, the last part is you have to determine all the dimensions of the component. If you are say, अगर आपके एक मशीन के अंदर शाफ्ट है, शाफ्ट का लेंथ कितना होगा, that you have to decide. शाफ्ट का डाया कितना होगा, दैट यू वांट टू डिसाइड. अगर आपके मशीन के अंदर में कहीं पे स्प्रिंग लगा हुआ है, फाइन, देन स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, दैट यू नीड टू डिजाइन, दैट यू नीड टू डिसाइड, एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज द fourth point. So all these steps, that is point number A, point B, point C and point D, are nothing but these are the 4 steps by which you have to design all the individual component present inside the machine. Is this step clear? The second last step, that is design of individual component. Any doubt? Still no, sir. Okay, fine. And the last part, that is the last step of machine design process, is once all these steps, which steps? This is step number 1, 2, 3, 4 and 5. Till design of individual component, if you have did everything correctly, the last step is you have to prepare the assembled drawings. You have to assemble all the component. Then you have to draw one assembled drawings, fine, and that assembled drawings will be nothing but the detailed drawing, in which you have to specify all the lengths, all the diameters, which part is failing through which criteria, and at last you will test that final drawing by making a prototype model, and everything goes well. Then you will give this prototype model along with your final design to the manufacturing department. That manufacturing department will finally prepare that component, whatever design you have given, and then they will sell to the market. This is the basic procedure of machine design process. Any doubt in this basic procedure? No, sir. No, sir. Fine. So it can come for 5 marks, it can come for 15 marks. So accordingly you have to write the answer. If it is for 5 marks, you should know how much you have to write, and if it is coming for 15 marks, for each and every point you have to give an example, and accordingly you have to explain your answers. ठीक है? Any doubt? No, sir. Fine. Okay. I know that this module is around 90% theory, so you will feel little bit bored, but I cannot do anything. We have to cover. Fine. So Okay, please bear with me. Only this module is theoretical module. Remaining each and every module is numerical module. Fine. Okay. Next topic. Next topic is the basic requirements of machine elements.
So far what we have discussed, so far we have discussed that what is a basic step in a machine design process. If I am designing any machine, what all steps I will follow step by step so that finally my design is ready. Now who is joining at this moment? Krishanu Paul, now he is joining. Okay. Now whatever component you have designed, fine, now you have to see that what are the requirements of these machine elements. For example, say in your machine there is a spring, there is a shaft, there is a bearing, there is a brake. Then what all requirement means, what all things should be there in your mind while designing all these four elements individually? Fine. First and foremost thing is strength. How do you define strength? See, a machine part should not fail under the effect of forces that act on it. That is, it should have sufficient strength to avoid failure either due to fracture or due to yielding. मैं कैसे डिफाइन करूंगा स्ट्रेंथ को? ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब क्या? अगर आपके बॉडी पे, ठीक है, आप कितना भी लोड अप्लाई कर लो, ठीक है, अगर आपका बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रहा है, अगर आपका बॉडी बेंड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मतलब अगर वो लोड, अगर लोड उस बॉडी को झेल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रेंथ. इफ इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, वो कब तक झेल सकता है? टिल द यील्ड पॉइंट वो झेल सकता है. इफ दैट इज अ ब्रिटल मटेरियल, कब तक झेल सकता है वो? टिल द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, जब तक फ्रैक्चर नहीं हो जाता. सो दिस इज so this point you have to keep in mind while designing any component. Means this is the basic requirement, this is the requirement for designing any component, that is the strength. कोई डाउट यहां तक? नो सर. फाइन, ओके. और क्या हो सकता है? रिजिडिटी. इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपका मशीन कंपोनेंट रिजिड है या नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप छोटे से भी छोटा फोर्स अप्लाई करो अपने मशीन कंपोनेंट में, अगर उसमें हल्का सा भी डिफ्लेक्ट हो, अगर वो आपका कंपोनेंट हल्का सा भी डिफ्लेक्ट हो गया या हल्का सा भी बेंड हो गया या हल्का सा उसका शेप इधर उधर हो गया, दैट मीन्स दैट कंपोनेंट इज नॉट रिजिड. इफ दैट कंपोनेंट इज नॉट रिजिड, यू कैन नॉट फर्दर डिजाइन दैट कंपोनेंट. आप कर सकते हो डिजाइन, बट खतरा रहेगा, कभी भी फेल हो सकता है. Fine. So this is again one factor which a designer should keep in mind for while designing any component. Third is wear resistance. इससे आप क्या समझते हो? चलो आप ही बताओ. Wear resistance से क्या समझते हो? क्या होना चाहिए किसी भी डिजाइन करते समय? wear resistance होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए. सब मटेरियल रिमूव हो सकता है सरफेस से. वियर रेजिस्टेंस होता क्या है? थोड़ा अगर कोई एक्सप्लेन कर पाएगा तो. सर वियर मींस रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मशीन एलिमेंट. वियर का मतलब, मान लो आपका कोई भी चीज वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन से होते होते अगर मान लो आपका क्या गियर, ठीक है, गियर मेट हो रहा है आपस में एक दूसरे से, मान लो अगर मेट नहीं हुआ, मेट नहीं हुआ मतलब क्या? वहां पे कुछ फॉल्ट हो गया, या गियर का जो टीथ है, टीथ मान लो बीच से टूट गया, ब्रेक हो गया, तो वहां पे बियरिंग हो गया. ठीक है, वो नहीं होना चाहिए. अगर वो ऐसा कुछ हो जाएगा देन आपका डिजाइन सेफ नहीं है. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डिजाइन करते समय. ठीक है, हेलो. Yes sir, yes sir. नेक्स्ट इज मिनिमम डायमेंशन एंड वेट. क्या कोई भी कंपोनेंट को डिजाइन करते समय उसका वेट और उसका डायमेंशन मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए? बोलो. सर मिनिमम होना चाहिए. Yes sir. मिनिमम होना चाहिए. मैक्सिमम अगर होगा तो आप फेलियर की तरफ जाओगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सिग्मा, मान लो मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं आपको, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए. ठीक है, सिग्मा जितना ज्यादा उतना एरिया कम है कि नहीं? अगर मटेरियल डक्टाइल है, सिग्मा कहां तक जा सकता है? सिग्मा जा सकता है यील्ड स्ट्रेंथ तक, सिग्मा वाई टी तक जा सकता है. सिग्मा टी इज नथिंग बट विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई टी.
मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ रीच कर गया बॉडी। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ रीच कर दिया तो एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा। जितना कम एरिया, जितने कम एरिया पे आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो वो फोर्स जिस एरिया पे आप लगा रहे हो वो उसको झेल लेगा। लेकिन अगर आप उसी को एरिया बड़ा कर दोगे, फोर्स घटा दोगे, तो क्या झेल पाएगा पूरा एरिया? हेलो? Yes, sir. नहीं झेल पाएगा। फाइन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट योर डायमेंशंस एंड वेट ऑफ द कंपोनेंट शुड बी मिनिमम ऑल द टाइम व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग। नेक्स्ट पार्ट इज मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ये क्या होता है मैन्युफैक्चरेबिलिटी? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये क्या होता है? बोलो। Sir, manufacturability means whether it can be like processed and manufactured seamlessly. तो सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करूं, मैन्युफैक्चरेबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से आप अपने डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट को बना सकते हो। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. फाइन। कितने आसानी से आप उसको फैब्रिकेट कर सकते हो, कितने आसानी से आप उसको असेंबल करके, मतलब पहले तो आप अलग अलग पार्ट को पहले बनाओ, मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद उस सबको एक साथ असेंबल करोगे। कितने आसानी के साथ आप कर सकते हो, दैट इज योर मैन्युफैक्चरेबिलिटी। आप कितने आसानी के साथ कर सकते हो, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो शेप है, जो मटेरियल आसानी से मिल सके, शेप थोड़ा सा इजी शेप हो, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा शेप ना हो, तब तो आप आसानी से कर पाओगे। हाँ कि ना? Yes, sir. फाइन। और जितना शेप सिंपल होगा, जितना मटेरियल इजी होगा, उतना लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा आपका, उससे आपका प्रोडक्शन भी इजी हो जाएगा, उससे आपका मैन्युफैक्चरिंग भी इजी हो जाएगा। सो मैन्युफैक्चरेबिलिटी होना चाहिए डिजाइन करते समय। दिस इज योर पॉइंट नंबर 5। सिक्स्थ पॉइंट इज योर सेफ्टी। अब इससे क्या समझ रहे हो आप? डिजाइन में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बोलो। Sir, safety is important, sir. सर होना चाहिए। सेफ्टी से Always, कैसे sir. यार, ये Always. सबको पता है होना चाहिए, थोड़ा आप एक्सप्लेन करो। अच्छा सर रिस्क कम होता है। Yes, sir. Safety मतलब वो प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में कितना सेफली काम करेगा बिना ब्रेकेज के। मतलब जो चीज आपने डिजाइन किया है, ठीक है, आप तो उसमें सब चीज डिजाइन करना मतलब क्या, उसमें सब चीज लिखोगे आप। हाँ, मैं अगर क्लच को डिजाइन कर रहा हूँ, क्लच को डिजाइन करने में जब आप इसको मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। अगर 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा तो इसमें आपको ये सावधानी बरतना पड़ेगा, यहाँ से दूर रहना पड़ेगा, यहाँ से पास रहना पड़ेगा, इसको टच नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो इन केस आपको वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस के लिए डिजाइन करना है। डिजाइनर क्या करेगा, मतलब गंदे से गंदा कंडीशन, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए वो अपने कंपोनेंट को डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देगा। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए अगर वो डिजाइन नहीं करेगा, उसको तो पता नहीं है कि उसका डिजाइन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेने वाला है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास सब चीज अवेलेबल है कि नहीं है उस चीज को डिजाइन करने के लिए। तो Exactly, sir. डिजाइनर क्या करेगा, डिजाइनर एकदम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में उस चीज को डिजाइन करके देगा ताकि सेफ्टी मैक्सिमम रहे। ठीक है, दैट इज योर सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। इससे क्या समझ में आ रहा है? इसका आंसर श्रीजीत ने अभी दिया था थोड़ी देर पहले। कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, इससे क्या समझ में आता है? सर इसका मतलब वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करके प्रोडक्ट हाँ, डिजाइन किया अभी गया है। जैसे मैंने आपको बोला था that on the very first day I told you about that we will be using design data book in this subject. That design data book is a standard. We use that design data book to design any component in industry also. Fine. For example, if you are designing a shaft, आप अपने घर से कोई भी डाया नहीं उठा लोगे शाफ्ट का, कोई भी लेंथ नहीं उठा सकते शाफ्ट का, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है,
जैसे आपने देखा होगा BIS स्टैंडर्ड का नाम सुना है ना, BIS स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है सर, ना। तो BIS Yes, sir. हाँ, तो ऐसे का मतलब BIS के जैसे ही बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है डिजाइन में। उन स्टैंडर्ड्स में बोला गया है कि दैट इफ यू आर डिजाइनिंग अ शाफ्ट फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 10 मीटर। आप ले ही नहीं सकते हो 10 मीटर से ज्यादा। 10 मीटर से ज्यादा ले लोगे वो स्टैंडर्ड फेल हो जाएगा, आपका डिजाइन एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। डाया आप से 500 से ज्यादा ले ही नहीं सकते हो। सो दी the things that I am talking about, these standards. Whenever you are designing anything, you have to keep in mind the standards. Standards को ध्यान में रखते हुए, जैसा बोला गया है कि मैक्सिमम कितना लेंथ में ले सकता हूँ, मैक्सिमम कितना डायमीटर ले सकता हूँ, मैक्सिमम कितना एंगल ले सकता हूँ अगर कोई चीज रोटेट हो रहा है, मैक्सिमम कितना एंगल तक वो रोटेट हो सकता है, that all things we have to take from those standards which are available in design data book. That is your confirmation to standards. Fine. Next point, that is the 8th point, is your reliability. अब इससे क्या समझ में आ रहा है, रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरा डिजाइन किया हुआ कंपोनेंट। हाँ सर। अब रिलायबिलिटी होता क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ रिलायबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भरोसा होता है सर। हाँ, रिलायबिलिटी मींस भरोसा, कि भाई मेरे को ये डिजाइन। Hello, sir. Hello, sir. Sir, we can't hear you, sir. हेलो। आवाज नहीं Hello. आ रहा। Yes, sir. सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। सर अब म्यूटेड है सर। सर अच्छा सर छोड़ दीजिए। सर का नेट नहीं है शायद। इंटरनेट चला गया। লাইট চলা গয়া। শ্রীত খেলবি এখন 4টা থেকে? अबे রেকর্ড হচ্ছে বে ইডিয়েট রেকর্ড। পড়াশোনার কথা বলছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো আসবো। খুব ভালো। সরি। আর তো 10 মিনিট আছে। হয়ে গেছে ক্লাস? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে হয়ে গেছে। স্যার তো লিভ করিস না আবার লাস্টে আমি দোষ খেয়ে যাব। না পাইন বলেছে। হ্যাঁ তাহলে বলে দেবো যে আগে পাইন না বলেছে না কি লিভ আছে? করিস না, লিভ করিস না। लीव कर दो सब पाइन देख लेगा। हाँ पाइन सब हाँ, मान फिर- लेगा चलो। विकास ने फोटो चेंज कर लिया। अरे और 10 मिनट टाइम है, ज्यादा टाइम भी नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है देख के। सो व्हाट। भाई भाई मान नहीं सकता है। फाइन बोल। साथ रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएगा ठीक है। सर का यूट्यूब का चैनल है। पाइन सर अरे को मैसेज करो ना। আরে মানে কিছু স্ক্রিনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, এইটা রেকর্ড পাঠাবে নাকি? হ্যাঁ কিছু একটা জিনিস ইউটিউবে আপলোড করার জন্য একটা তো কন্টেন্ট হওয়া দরকার, যেটা স্ক্রিন করছে স্যার। ও এটা কাট করে দেবেন স্যার। ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিনটাকে ইউটিউবে দেবে নাকি স্যার? স্যার যদি কাটও না করেন আমাদের কথাগুলো শুনে স্টুডেন্টরা কাট করে নেবে। চাপ- এই স্যার ফোন করছে, স্যার ফোন করছে, একটু দাঁড়াও।
পাইন বেরিয়ে গেল। সাগরি অ্যাসাইনমেন্টটা করেছিস ওই ডিবিএমএস এর? এই Assignment ভালো গুলো মনে করিস তো? না কবে সাবমিট করবে না? আরে ওটা 18 তারিখ কি 18 17 তারিখ তারিখ না? বলেছে, অনেক কত দেরি আছে। 18 তারিখ। করতে হবে ভাই। ভাই তোরা এটা করছিস কি সেমিনারের যেটা দিয়েছে? সেমিনার বলছি প্রজেক্ট একটা কোভিড-19 ও পিপিটি যেটা impact of বানাতে বলেছে। COVID-19 হ্যাঁ 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 ওটা করতে হবে তো। গ্রুপ 3 জনের গ্রুপ বানাতে বলেছিল তো। 4-5 জন 4 জন 5 জন। 4 জন। हाँ 4 जन ग्रुप बना लिया तुम लोग? ग्रुप बनाया, ग्रुप ही तो बनाया, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। कौन कौन है? मैं व्हाट्सएप में बोल दूंगा। বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে না, কি অবস্থা রে? হ্যাঁ আজকে যা ওয়েদার দিয়েছে না ভাই, মজা আসছে, পুরো ঠান্ডা হাওয়া চলছে। সেটাই। फाइन बोल से अटेंडेंस दे दो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे अटेंडेंस দিতে বলছে স্যার। Okay. আসবে না মনে হয়, বেরিয়ে যা। এই স্যারকে সৃজিত message না গ্রুপে। গ্রুপে व्हाट्सएप। ঠিক আছে। সৃজিতের ফোন থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে। হ্যাঁ ভাই, বাই দ্য ওয়ে, এটা রেকর্ডেড হয়ে যাচ্ছে এখনো। হ্যাঁ জানি। এবারে অনেকগুলো পেপার আছে ভাই। কটা আছে রে? একটা তো তোর এই কোভিড এর ওপর, তারপর তোর রিসার্চ পেপার যেটা করতে হয় ওটা 4 জনই মিলে, স্টার্ট আপটা আলাদা, এটুকুই তো আপাতত বুঝেছি। আর কিছু আছে নাকি? ইন্ডিভিজুয়াল আছে? নেই মনে হয়। আর তো মনে হয় কিছু নেই। ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে ওই উইকে একটা করে দেবে, কি ছোট ছোট। কিটা ইন্ডিভিজুয়াল? ওই হ্যাঁ, পরের উইকে দেবে একটা, আবার ও আচ্ছা। কোভিড এর পর এইভাবে দেবে। এই সাগনি চল বেরোলো। লিভ করে যে, হ্যাঁ चलो सब लोग लीव करते हैं।